جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ جاڑا وغیرہ کی دقت نہ ہوئے، الاؤ وغیرہ جلوا دیں گے پوری طریقے سے، اور باقی انتظام کراویں گے کہ جس سے لیٹنے بیٹھنے میں ان کو تکلیف نہ ہو، آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے بہت اہم جذبے ہیں، جوش ہے، خروش ہے، ظاہر جب نیت اچھی ہوتی ہے تو حالات سازگار ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت اہم معاملہ اس حوالے سے بھی ہے کہ دیکھیے جو بہت شدت میں لوگوں کو باہر کہیں نہ کہیں رہنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے، لیکن درگاہ کمیٹی کے ذمہ داران نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ اس حوالے سے بھی بہت خصوصی اور اہم کوششیں کی جائیں گی آئندہ بھی کہ ایسا انتظامات کر دیے جائیں کہ خاص طور سے خواتین کو پریشانی نہ ہو۔ آپ لوگ بہت بہت دور سے یہاں پر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کیا کچھ فرمانا چاہیں گے آستانے کے بارے میں؟ جی، یہ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ ہم یہاں سے پورے قوم و ملت کو ایک جہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہ ایسی درگاہ ہے جہاں بلا مذہب و ملت ہر آدمی شرکت کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ اور یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی لوگ رہیں امن و شانتی کے ساتھ رہیں۔ امن و شانتی کے ساتھ رول رہے ہیں، پیغام دیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے محترم؟ بہت اہم موقع ہے، ظاہر ہے کچھ فرمانا جائیں گے؟ صدر صاحب تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت ایک منظر پیش کر دیا ہے، آپ کی خدمات کی ستائش کی جا رہی ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور آج کل کی رسم میں جس انداز سے لوگوں نے شرکت کی ہے، بہرائش سے پیغام کی ترسیل کو یقینی بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں کا ماننا یہی ہے کہ غیر معمولی طور پر انتظامات ہوئے، آپ نے بہت کوششیں کی، درگاہ کمیٹی کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں، کیا کہیں گے صدر صاحب؟ یہ دیار غازی ہے، یہاں لوگ محبت سے آتے ہیں، محبت سے پیش ہوتے ہیں۔ کافی مجمع آیا تھا، کافی لوگ ہوئے، کل شریف میں شریک ہوئے، اور دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اب کل شریف کا پروگرام ختم ہو چکا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، اور سبھی سے یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر اگلے سال میں پھر پروگرام منایا جائے گا۔ امجد بھائی بہت کوششیں کی آپ نے، بہت اہم کوئی، لیکن یہ بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو کہ آئندہ جب وہ آئیں تو کیا عہد کر کے آئیں، کیا انہیں بہتر ملے گا؟ خاص طور سے خواتین کے جو انتظامات ہوں گے وہ کس حد تک بہتر ہوں گے؟ خاص طور سے جو ٹھہرنے کے انتظامات ہوں گے، ٹھنڈ ہوگی اگلے سال بھی، تو کیا انتظامات خاص کیے جائیں گے آپ کی جانب سے، آپ کی کمیٹی کی جانب سے؟ دیکھیے اگلے سال تو فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ وہی عرس منایا جائے گا، ٹھنڈ بھی پڑے گی۔ درگاہ انتظامیہ کی طرف پوری کوشش کی جاتی ہے، اتنے مجمع کو کنٹرول کرنا معمولی بات نہیں ہے، مگر زائرینوں سے یہی ہے کہ اگلے سال جب آئے تو اپنا بھی انتظام کر کے آئے، اور درگاہ کی طرف سے جو بھی بہتر انتظام ہوگا کیا جائے گا، اپنی طرف سے بھی سہولت کر کے آئے لوگ، اور رہنے کے لیے کوئی دقت یہاں نہیں رہے گی۔ جو خبریں آ رہی ہیں سننے میں وہ اس انداز کی بھی ہیں کہ پولیس انتظامیہ نے آپ کا بہت سپورٹ کیا ہے، بہت تعاون کیا ہے، خاص طور سے کورونا وبا میں جس انداز کے انتظامات ہونے چاہیے تھے ویسے ہی ہوئے ہیں، آپ کو کوئی شکایت یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ کورونا کا انتظام ہے، چناؤ بھی چل رہا ہے، وہی پولیس کی ٹیم کم ہے، اس کے بعد بھی ضلع پرشاسن پولیس پرشاسن کا ہمارا بڑا سہیوگ رہا ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہر چوراہوں پہ، ہر راستوں پہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے، نگرانی کر رہی ہے، اور ان کا بڑا اچھا رول رہا ہے۔ سب لوگ جو ہے اپنا انتظام میں لگے ہوئے ہیں، پرشاسن کے لوگ بھی باہر لگے ہوئے ہیں، اور زائرینوں کی دیکھ بھال کے لیے ہر اسٹیج پہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت اہم بات کہہ دی ہے شمشاد صاحب نے کہ آئندہ جو انتظامات ہوں گے وہ اس حوالے سے بہتر ہوں گے کہ جو شکایتیں فی الوقت رہ گئی ہیں لوگوں کو وہ آئندہ وہ دور کر دی جائیں گی، بالخصوص خواتین کے ٹھہرنے کے جو بندوبست ہیں انہیں بہتر بنایا جائے گا، خاص طور پر جو لوگوں کو بنیادی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، درگاہ کمیٹی کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی۔ اور دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ جس انداز کے انتظامات ہم نے یہاں پہلے دیکھے تھے اس سے بہتر انتظامات اب دیکھے ہیں، اور امید کرنی چاہیے، یقین کرنا چاہیے جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انتظامات مزید بہتر ہوں گے۔ شمشاد صاحب اور ان کے جو ہمنوا ہیں، ان کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جو ہم نے جوش اور جذبہ دیکھا ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا وقت بہرائش کے لیے بہت بہتر ہوگا، ریاست اتر پردیش کے لیے بہت بہتر ہوگا، ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور بالخصوص ان تمام تہذیبی اور ثقافتی عوامل کے لیے بہت بہتر ہوگا جن کا تعلق اس مقدس آستانے سے ہے، صوفیاء کرام کی تعلیمات سے ہے، ان تمام جذبوں سے ہے جس کی آج اس ملک کو ضرورت ہے، ان تمام تقاضوں سے ہے جس کی آج اس ملک کو شدید ضرورت ہے۔ کچھ اور اہم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ نفرت کا دور ہے لیکن اس میں محبت کے پیغام دیے جا رہے ہیں اس درگاہ سے۔ محبت کا پیغام تو یہیں سے ملتا ہے، سید سالار مقصود غازی رحمت اللہ کے یہاں سمجھ لیجئے جو پیغام یہاں سے ملتا ہے وہ پیغام آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہاں پر جیٹ کا میلہ ہوتا ہے، جیٹ کا میلہ ہوتا ہے جس میں 80% ہندو بھائی میرا آتا ہے یہاں پر، 80% ہندو بھائی میرا یہاں آتا ہے، اور سمجھ لیجئے جو یہاں سے جس کو جو آتا ہے
वो यहाँ से फायदा लेके जाता है, फैज लेके जाता है, इनाम लेके जाता है सैयद सलार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह के यहाँ से। इनाम लेके जाता है। दामन मुराद जब फैलते हैं तो उनकी झोलियां भर जाती हैं। जाहिर है कि देखिए एक सिलसिला है, फैज़ो बरकत का सिलसिला है, दुआओं की मकबूलियत का सिलसिला है, उन तमाम मसाइल के हल होने का सिलसिला है जिससे आज पूरी मिल्लत, पूरा मुआशरा, पूरा मुल्क दो चार है। हम दरख्वास्त करते हैं बहराइच के इस उर्स में कि आइए इस आस्थाने पर अपनी दामन मुराद को फैलाइए, दुआएं मांगिए, वसीले से मांगिए, सैयद सलार मसूद काजी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से दुआएं मांगिए और फिर देखिए कि किस अंदाज से आपकी दुआएं कबूल होती हैं। जाहिर है कि एक सिलसिला जो ये सदियों से जारी था और सदियों तक जारी रहेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कुछ और मनाजुर के कुल शरीफ के बाद किस अंदाज से लोग जो है अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं, किस अंदाज से। और देखिए अभी कुछ और बाहर आइए, कुछ और मनाजिर आपको पेश करेंगे हम। और देखिए हमारे साथ बहुत जिम्मेदार लोग भी अभी जुड़ रहे हैं। और ये मैं बता दूं आपको कि बच्चा भारती साहब मौजूद है। देखिए अकरम आजाद अकरम साहब आइए। और देखिए ये अकरम आजाद साहब हाईकोर्ट से हैं, एडवोकेट हैं, यहाँ पर बहुत अहम शख्सियात में इनका शुमार है। अकरम साहब, कुल शरीफ की रस्म अदा की गई, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? जी 1019वां उर्स था आज हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का, और यहाँ दूर नज़दीक से तमाम लोग लाखों की तादाद में हाजिर हुए और हम लोग ने कुल शरीफ में शिरकत की। दुआएं मांगी गई, अमन खैर की दुआएं मांगी गई और तमाम तरह से इंतज़ामिया का जो भी इंतज़ाम रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छी सबके लिए सहूलियतें फराहम की गई हैं। और लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ फैज़ पाने के लिए अपनी अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं और सबकी जायज़ तमन्नाएं जो हैं वो यहाँ पे पूरी होती हैं इस दर से। तो इस दर पे सबकी अकीदत है, सबका यहाँ हिंदू मुस्लिम हर मजहब के लोग यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। तो और हिंदुस्तान की सबसे कदीम दरगाहों में से एक है ये आस्थाना, तो सबके लिए तमाम मजहब के लोग तशरीफ लाते हैं। जाहिर है कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे और हम लोग भी मौजूद हैं, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक दरगाह है। यहाँ 1019वां उर्स इस साल मनाया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन एक अपनी मुरादें पाके जाते हैं यहाँ से दरगाह से। बच्चा भारती हमारे साथ मौजूद है। बच्चा भाई, आप बहुत अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मैं देखता हूँ हर साल आपको होश ही नहीं रहता है, जितनी जज्बे के साथ, जितनी शिद्दत के साथ आप खिदमत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके? आस्थाने हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1019वें उर्स मुबारक के मौके पर आज जो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला से, सूबों से अकीदतमंदान गाजी चल करके आए हैं, सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर से आज के इस प्रोग्राम को जो पूरी दुनिया के अंदर दिखलाया जा रहा है, न्यूज़ 18 के मालिकान, न्यूज़ 18 की पूरी टीम, बिल्कुल भाई राहिल पासा साहब का और वहां बैठे हुए मुफ्ती साहब का के हम शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल करके आस्थाने हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की जो खिदमात हैं और हजरत सैयद सलार मसूद गाजी की शख्सियत के ऊपर जो रोशनी डाली जा रही है, आज पूरी दुनिया जो है उससे वाकिफ हो रही है। आस्थाने हजरत सैयद सालार मसूद गाजी मोहब्बत और यकजहती का जो है एक नमूना है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में हर मजहब के मानने वाले लोग, इसके अंदर ये कैद नहीं है कि किस मजहब के मानने वालों की तादाद ज्यादा है। यहाँ आप पहचान कर पाना मुश्किल होता है कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, कि ये सिख है, कि ईसाई है। हर शख्स जो है। बच्चा भाई, एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है इस मरतबा के बाहर से फोन आ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम जहां जहां गया है वहां से लोगों ने ज़ियारत का शरफ हासिल किया है, तो इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए आइंदा साल क्या हिकमत अमली वज़ा की जाएगी? देखिए, न्यूज़ 18 ने हमेशा जो है दरगाह इंतजामिया कमेटी की जो है हौसला अफजाई की है, जिस तरह से लाइव नस्र करके आज पूरी दुनिया देख रही, क्योंकि बहराइच जिला जो है भारत नेपाल की सरहद के ऊपर बसा हुआ है। हम सरहदी जिला कहलाते हैं, सीमावर्ती जनपद, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जनपद यह कहलाता है। यहाँ के ऊपर वसाइल की आज भी तमाम कमी है। जहाँ बड़ी रेलवे लाइन की असद जरूरत है कि बहराइच से दिल्ली तक के अगर जो है खास तौर से जो है लखीमपुर तक जो है अगर बड़ी रेलवे लाइन की जो है सहूलियत हासिल हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़ी रेलवे लाइन का एक 62 किलोमीटर का हिस्सा बना है।
लेकिन जो जरूरत है बहराइच से लखनऊ तक जोड़ने की, उसमें हम कहीं न कहीं से मुल्क की 72 साल की आज़ादी के बाद आज भी जो है हम बड़ी रेलवे लाइन के लिए तरस रहे हैं। आस्थाने हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी पर आपने देखा होगा कि हम अकीदतमंदान गाजी की जो भी उनके जानिब से यहाँ के ऊपर जो है नजराना पेश किया जाता है, उस पैसे का जो इस्तेमाल है ये 13 रुकनी कमेटी दरगाह इंतजामिया कमेटी की, जिसकी क़यादत भाई सैयद शमशाद अहमद एडवोकेट कर रहे हैं। हमारे साथ दिलशाद अहमद एडवोकेट, ये हमारे कमेटी के रुकन हैं। भाई अजमतुल्लाह साहब ये गिरदावर हैं हमारे, मकसूद अहमद रायनी साहब हमारे दोस्त हैं, ये वसीम साहब मिकरानी साहब हमारे दोस्त हैं, और ये जो हमारे बच्चे लोग खड़े हुए हैं, ये सारे लोग मिल करके जो है एक जज्बे के साथ में यहाँ के ऊपर काम कर रहे हैं। आइंदा साल मजीद बेहतर क्या करने का इरादा है? अभी आपको मालूम हुआ होगा कि ये जो है इंतजामिया कमेटी की जानिब से एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ को हम खास तौर से तालीम के मामले में जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच गाजी मियाँ की सरजमी के ऊपर इंतजामिया कमेटी की जानिब से बेटियों की तालीम के लिए, तालीम निस्वा के फरोग के लिए एक बहुत बड़े इंटरमीडिएट कॉलेज का क़याम किया गया है। 34 कमरों का जो है इंटरमीडिएट कॉलेज खोला गया है। हुकूमत से जो है उसकी सनद हासिल हो चुकी है, इंटरमीडिएट तक हासिल है। इसी तरह हम लड़कों का एक आदाद इंटर कॉलेज के नाम से जो है लड़कों की तालीम के लिए है। यहाँ के ऊपर हाई स्कूल तक जो है बेटियों की तालीम के लिए यहाँ के ऊपर काम हो रहा है। 4 हमारे प्राइमरी स्कूल यहाँ के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मरीजों की खिदमत के लिए, बीमारों की खिदमत के लिए फ्री उनका इलाज हो सके 10 बेड का यहाँ के ऊपर हॉस्पिटल बना हुआ है। आम इंसान शादी ब्याह के मौके पर जो लोग लाखों रुपया खर्च करके जा करके जो है कहीं न कहीं के ऊपर खर्च करके अपनी बेटियों का या शादी ब्याह के लिए जो है मैरिज लान लेते थे, दरगाह इंतजामिया की जानिब से जो है एक निकाह घर की तामीर की गई है, जो बहुत ही सस्ते में हम उनको जो है खर्च के ऊपर जो है मुहैया कराते हैं कि लोग आसानी के साथ में आकर के जो है शादी ब्याह के जो है काम कर सके। आप ये किला देख रहे हैं, सामने जो ये किला बना हुआ है ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक के दौर का जमाने का किला है। ये इसकी दीवारें मकदूस हो चुकी थी, धीरे धीरे जो है पप्पड़ निकलना शुरू हो गए थे। ये दरगाह इंतजामिया कमेटी को इस बात का शर्फ हासिल हुआ है कि आज ये पूरा किला आप देख रहे हैं जो एक बादशाह का किला होना चाहिए, लाल पत्थरों से जो है इसको सजाया गया है। अंदर में इसके साथ में जो है मजहबी अमूर के ऊपर भी काम किया जा रहा है। हम हमारे चंद कदम की दूरी के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी मस्जिद की जो है जो मकदूस हो चुकी थी उसकी नौ तामीर की गई है। सामने आप देख रहे हैं ये शाही मस्जिद है जो बादशाहों के जमाने की बनी हुई थी, इसकी नौ तामीर की गई है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, कैमरामैन से कि दिखा दें जरा वो किला, वो मस्जिद जिसकी तामीर को यकीनी बनाया गया, जिसका रिनोवेशन किया गया, जिसकी असर नो तामीर की गई। देखिए ये वो बुलंद बाला इमारत है, ये वो किला है जिसका एक सदियों पुराना इतिहास है, एक सदियों पुरानी तारीख है। जाहिर है कि ये मखदूश हालत में था और बच्चा भाई और उनके साथ काम करने वाले लोग, दरगाह कमेटी के दीगर लोगों ने एक अज़्म उठाया, एक बेड़ा उठाया और इसको यकीनी बनाया और अब ये मखदूश इमारत अपनी पूरी शान और शौकत के साथ नजर आ रही है। बच्चा भाई एक खास बात और तारिक साहब बताना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा ताउन रहता है, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, माफी चाहते हैं। दरगाह आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की तमाम औकाफ के ऊपर निगाह दौड़ा करके देख लीजिए, अक्सर जगहों के ऊपर जो है वक्त की जायदादें धीरे धीरे घटना शुरू हो गई। वक्त नंबर 19 दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी इंतजामिया कमेटी को ये एजाज हासिल हुआ है कि उत्तर प्रदेश की तारीख में ये पहला मौका है कि दरगाह इंतजामिया कमेटी ने जायरीन की खिदमत के लिए, क्योंकि यहाँ के ऊपर जिस तरह से लाखों की तादाद में लोग आते जा रहे हैं, शहर जो है बढ़ता जा रहा है, दरगाह शरीफ का एरिया सिमटता जा रहा था धीरे धीरे। हम लोगों को महसूस हुआ कि कल ये जायरीन यहाँ जो लाखों की तादाद में आ रहे हैं इनके कयाम का कहाँ के ऊपर इंतजाम किया जाएगा। दरगाह इंतजामिया कमेटी ने 50 बीघा जमीन दरगाह शरीफ के इर्द गिर्द जो है खरीद करके जो है दरगाह इंतजामिया ने कमेटी ने खरीदी है, जिससे कि आने वाले वक्त में जिस तरह की भीड़ हो रही है, आने वाले वक्त में जो है जायरीन की सहूलियत के लिए वहां के ऊपर कोई तामीरी कामों को अंजाम दिया जा सके। बहुत अहम बात कही है। देखिए बच्चा भारती ने
बुनियादी बात यही है कि हाल में क्या किया जा रहा है, माजी में क्या किया गया, लेकिन मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं। मुस्तकबिल के मंसूबे निहायत रोशन इस हवाले से हैं कि किसी एक सतह पर काम नहीं हो रहा है। मुस्तकबिल के मंसूबों में, मुस्तकबिल के ख्वाबों में रंग भरने के लिए न सिर्फ मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आएगा, बल्कि सैकड़ों बीघे जमीन खरीद के इसलिए डाल दी गई है कि जहां जहां जिस मुहाज पर तामीरात की जरूरत पड़ेगी दरगाह कमेटी आगे बढ़कर कराएगी। बच्चा भाई, मेडिकल कॉलेज के ताल्लुक से कई साल से हम खबरें सुनते आ रहे हैं, क्या कुछ पेशरफ्त है, क्या पैगाम देना चाहते हैं आज इस मुबारक मौके पर? दरगाह इंतजामिया कमेटी ने गुज़िश्ता दिनों जो है अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब से, जिनसे दरगाह इंतजामिया कमेटी को एक अवार्ड भी हासिल हुआ है पिछले 2 साल पहले, उनसे मुलाकात की थी। दरगाह इंतजामिया कमेटी की ख्वाहिश ये है कि हम यहाँ के ऊपर जो है एक मेडिकल कॉलेज का क़याम कर सकें। BUMS कॉलेज खोलना चाहते हैं, जिससे जो है हमारे घर के जो बच्चे दूर दराज तालीम हासिल करने के लिए यहाँ जाते हैं उनको यहाँ के ऊपर सहूलियत हो। इसकी जानिब जो है हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है हम लोगों की, इस जज्बे को जो है, इस ख्वाबों को। बहुत अहम सवाल, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूं कि देखिए मेडिकल कॉलेज का क़याम हो रहा है, तालीमी इदारे बन रहे हैं, नई नस्ल को किन चीजों की जरूरत है, क्या बाकी उस सिमत में काम हो रहा है? जी बिल्कुल, उसमें काम हो रहा है। यहाँ पर मेडिकल की बहुत सख्त ज़रूरत है बहराइच में, और यहाँ उस BUMS इदारे जब खुल जाएंगे यहाँ पर, तो हमारे जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने उनको यहाँ पर फायदा होगा, और वो यहाँ पर रह के अपनी इस सहूलियत को पा पाएंगे। सहूलियत मिलेगी, और जब सहूलत लोगों को मिलेगी तो यकीनी तौर पर दरगाह कमेटी के लिए अकीदतें बढ़ेंगी, और जब दरगाह कमेटी के लिए अकीदतें बढ़ेंगी तो उर्स अपनी शान शौकत को भी दोबाला करता रहेगा। बच्चा भाई, आपको भी दुआएं मिलेंगी। जाहिर है कि ये सदियों पुराना सिलसिला है, इसकी अपनी रिवायतें हैं, इसकी अपनी तहजीब है। आपने बहुत अहम खिदमत अंजाम दी है। आप मोहतरम के बारे में कुछ फरमा रहे थे, आप फरमा दें तो मैं उनसे एक सवाल करूं। देखिए तारिक साहब, ये आज की जो लाखों की भीड़ देख रहे हैं, दरगाह इंतजामिया कमेटी ने कहीं से इस बार ऐलान नहीं किया था। ये जो भी भीड़ आई हुई है ये सब अपने आप आई हुए हैं। हम पूरी तरह से जो है कोविड को देखते हुए उस प्रोटोकॉल के ऊपर अमल कर रहे हैं। कोशिश हम लोगों की, इसीलिए ना हम लोगों ने कोई ऐलान किया कि यहाँ के ऊपर कोई उर्स होना है, या क्योंकि ये रवायत सैकड़ों साल पुरानी चली आ रही है। लोग अपने आप जानते हैं कि दरगाह शरीफ में उर्स कब पड़ना है, जेठ का मेला कब होना। ये हमारे साथ भाई अजमतुल्लाह साहब हैं। भाई, आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने, बहुत खिदमत अंजाम दे दें, बेलोस खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप, इसका अजर तो आपको अल्लाह देगा, दरबार गाजी से मिलेगा। क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग खादिम है यहाँ के, हमारा काम है यहाँ का खिदमत करना, इसलिए हम खुदाम भर अपने कोशिश करते हैं कि क्या नाम है यहाँ का इंतजाम सही सलामत रहे और सही तरीके से इंतजाम हो। कोशिशें की जा रही हैं, और कोशिशें जब की जाती हैं तो खुदा उनको कामयाब भी करता है। जाहिर है कि ये किसी एक शख्स का मामला नहीं है, पूरे अंजुमन का, पूरी दरगाह कमेटी की खिदमत है जिनका एतराफ़ हर सतह पर किया जा रहा है, और उनका एतराफ़ वो तमाम निगाहें कर रही हैं, वो तमाम लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से, खित्तों से, इलाकों से यहाँ पर कुल्फ शरीफ की रस्मों में शिरकत की। क्या फरमाना चाहते हैं? ये जो हम लोग खुदाम का जो यहाँ के ऊपर मामला है, जो हम लोगों के दिल में खुदाम के लिए बेइंतहा अकीदत और मोहब्बत का जज्बा रहता है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। अजमत साहब जो गिरदावर हैं, ये खुदाम के हेड हैं, क्योंकि इनके आबा और अजदाद जो खुदाम है हमारे, इनके आबा अजदाद ने जो यहाँ के ऊपर जो सबसे कीमती सरमाया रखा हुआ है, हजरत अली करम अल्लाह वजू के हाथ के लिखे हुए कुरान करीम, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत अली करम अल्लाह वजू के हाथ की, मौला कायनात के हाथ की लिखी हुई कुरान करीम है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसको हिफाजत सैकड़ों साल से जो है ये सवाल, और साथ साथ जो है साहिब आस्ताना हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का पैरहन, जो आपके बदन के ऊपर जो कपड़ा नस्ब किए हुए थे, जिसके ऊपर कुरान करीम की आयत करीमा पूरी की पूरी लिखी हुई है। आप खुदाम के जो अजमत साहब के जो बुजुर्ग थे, खुदाम के जो यहाँ के, इन लोगों ने उसकी हिफाजत की है, और आज जो है इस मुल्क के वो जो है हमारे लिए कीमती सरमाया यहाँ के ऊपर है। आप हमारी लाइब्रेरी की तरफ अगर कभी देखेंगे तो जो अल्लाह चारों आसमानी किताबें बहराइच की लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलेंगे। जो है आबेदर से लिखे हुए कुरान करीम के जो है पारे, कुरान करीम
बादशाहों के हाथ की लिखी हुई कुरान करीम आपको यहाँ के ऊपर, इसके अलावा सभी मसलक के मानने वाले, सभी मजहब के मानने वाले लोगों की जो है एक बहुत बड़ा यहाँ के ऊपर जो है सरमाया मौजूद है, जो लाइब्रेरी की शक्ल में सालार लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। सुभान अल्लाह। देखिए बहुत अहम खिदमात हैं और एक बहुत अच्छा पहलू वाज़े किया मोहतरम बच्चा भारती ने कि जो हमारा तहजीबी सरमाया है, जो हमारा मजहबी सरमाया है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के बाब में भी खुद्दाम दरगाह कमेटी बहुत अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो पैराहन शरीफ का तहफ़्फ़ुज़ हो या आब दर से लिखे हुए कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ है, दूसरी तमाम अहम आसमानी किताबों का सहीफ़ों का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो देखिए ये बहुत अहम पेशरफ्त इसलिए भी है कि सिर्फ अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने इस्लाफ के तमाम जो नवादरात हो सकते हैं, जो सहीफ़े हो सकते हैं, जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बाब में जो कोशिशें की जा रही हैं, उस हवाले से भी दरगाह कमेटी बहुत अहम खिदमत अंजाम दे रही है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि दिखाएं वो मनाजिर कि किस अंदाज से लोग अब वापस जा रहे हैं दरगाह कमेटी से जी और रुख तैयार कर रहे हैं अपने घरों की तरफ का। जी तारिक साहब, मैं आपसे और भी सवाल करूंगा और अब्दुल रहमान उर्फ बच्चे भारती से भी मैं सवालात करूंगा, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते फिर हम आपके पास आते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम उर्स हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये खास